Recording start हो चुकी है. This topic is about the insert and delete subprograms for Turing machines. We know Turing machine जो है हमारा एक model है on which our current computer systems are based. So we know we excessively use subprograms, subroutines, functions, procedures. So Turing machine में भी हम कैसे use करते हैं, because if there's something that is being replicated or a function or a process or something is being done repeatedly, instead of writing the code or instead of writing the logic again and again, it makes sense that we have a subprogram that handles this for us, right? We know the logic, why we need to have functions and why we need to have procedures in our programs. So we'll be looking at a function like this, which will be one of the, there are many functions. Of course, you can make function for anything, but just as a sample, as a good utility, we will be doing two subprograms or functions. One is insert and the other one is delete. Let me take you to the slides and you can have a look at the slides, how they are actually used. I hope you all can see my screen. So insert subprogram हमारे पे कैसे है? It's आपकी book में भी given है. It is also given in the slides. Insert क्या करता है? आप अपनी current location के ऊपर wherever you are, you can insert something at that location, which means that rest of the contents are moved ahead on the right hand side. It is same as the insertion that we do if we want to insert something in an array. If you have to insert something on an array at a particular location, and if you want to preserve the rest of the contents of the array, then what we will do is, if at that location we are inserting something else, we have to move the rest of the array one step ahead. Which means कि अगर आपका, मैं अगर इन diagrams को अलग ले लूं, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है. ट्यूरिंग मशीन है. The first one tells you the at point A, that's where your pointer is, right? So you have to orient yourself according to where your pointer is pointing. So pointer आपका point कर रहा है A के ऊपर, right? उसके बाद if at that point you want to insert, right, you can insert whatever is allowed to be inserted on the tape. So let's say you want to insert a B. So this insert operation आप देखेंगे कि ये आप आगे जाके जैसे हम कह सकते हैं ना, we can just plug in different arguments, अब वो काम भी कर सकते हैं. For the time being आपने जब कहा insert B, तो what happens is at that particular location जहाँ पे A था, वहां पे B is inserted, while the rest of the contents of the tape, they are moved one step ahead. So you have A, B, B, X. So you had four contents, four letters before the null started. We have A, B, B, X. They have all been shifted one step to the right. Another thing to note is that your tape head, it points to the next location, right? So आप कहें कि जी मैं जहाँ पे processing हुई है उसके ऊपर होना चाहिए, कर सकते हैं. But because of course there's nothing right or wrong, it's just a sample, right? So here the insert subprogram that is being used in the book and in the slides, what it does, the location where it does the insertion, it moves itself, or after getting done with the insertion operation, ये tape head को one step ahead छोड़ते हैं, right? So now my question is, how will we go about solving this insert subprogram? Any clues? जी, anybody?
Maybe Shuja can answer for me. Algorithm आपने इसका बताना है. I'm trying to just find out an algorithm that we could potentially use, like a Kenneth Morris algorithm, which finds out a string. Sorry, what do we potentially look for? A string matching algorithm, like as I mentioned, a Kenneth Morris algorithm, or something that searches for a string along the way. No, no, it's very simple. It's very primitive. There's no specific algorithm that you have to use. Maybe it's more about thinking something on your own, using your brain to use it. There's nothing specific algorithm that we need to look for. What we need to do is we need to, make a space for whatever we want to insert, and then and moving the rest of the contents one step to the right. That's it. How can this be done? Faira maybe can try responding to this answer. Ma'am, we can do it when we insert the particular alphabet, maybe A or B, and then we can move it one step right and make a space for the new element that is being inserted. ऐसा करते हैं, एक बना लेते हैं, ठीक है. लेट्स ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स का है. इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, राइट. सो लेट्स से मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है A, ठीक है जी. और मैं कहती हूँ मुझे इस लोकेशन पे लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट लेट्स से एक्स मुझे इंसर्ट करना है, राइट. और ये येलो जो है ये हमारा टेप हेड भी पता है. सो व्हाट आई विल डू इज कि मुझे बेसिकली यहाँ पे एक बनानी होगी स्पेस, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा x, राइट. दैट्स व्हाट आई वांट दैट माय फाइनल कंटेंट्स, दैट्स हाउ दे शुड बी लाइक. तो ये एल्गोरिथम क्या बनेगा मेरा, टेप कंटेंट्स मेरे यहाँ पे. एल्गोरिथम क्या बनेगा कि व्हाट आई विल डू इज that I will have to, we'll have to start thinking differently if we want to do things differently. So now what we need to do is we need to read this location and override whatever we want to write, right? But such a way that we remember that it was B that we had read and that B has to be overwritten at this location. Now, before we override B at this location, we have to remember that there was an A at this location. When we override this A, we have to remember that there was an A that had to be put at this location. यहाँ पे of course आपको पता है आगे null होगा, right? मैं null यहाँ से copy कर लेती हूँ. So next, once you've done this, यहाँ पर जब आप आएंगे, you need to remember that this is where my string has ended, and now I need to put in that pending A that somehow I remember has to come over there. And because your tape head has to be picked up from where you had inserted the program, so it means you need to keep a marker. You need to remember where you came from. So maybe you need to leave a different sort of marker, different from what that distinguishes maybe a dollar or some different a symbol. वो जैसे नहीं होता जब आप footstep छोड़ के जाते हैं, so you can just know where to head back to. So यहाँ पे भी you have to leave a marker, otherwise you will not be able to know. For example, अगर यहाँ B होता that you had to insert, you will simply not know कि क्या आपने insert करना है. Right? आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया? I'll also be explaining in detail. कोई कंफ्यूजन? इन द मीनवाइल मैं अपनी टैब से लॉगिन करती हूँ. Discuss with me. Okay.
अच्छा, अगर समझ आ गया तो कोई मुझे इसका लॉजिक भी बना दे और स्क्रीन शेयर कर दे। आई वुड बी रियली हैप्पी दिस वे। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी काम करूं तो मैं आई वुड वांट टू शो यू दीज स्क्रीन्स, राइट? कि लैग्रिथम बनता कैसे। पहली बात तो ये कि डरना नहीं है आप लोगों ने, राइट? इट मे लुक टू क्योटिक और क्लटर्ड और मे बी स्केरी, लेकिन हम लोग बहुत आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। So this is how your insert utility looks like, and जो delete हम करेंगे वो हमारी कुछ जो delete हम करेंगे वो हमारी कुछ इस किस्म की रहेगी, right? So so my comments again would be that you don't really have to be scared of how it's going to be made, क्योंकि अब हम बनाने लगे। पहली बात तो ये कि हमें लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। लेट्स गो ओवर द लॉजिक फर्स्ट। मैं टैब के ऊपर आप लोगों के साथ बनाती हूँ। So last भी वही काम हुआ था जहां से हमने छोड़ा था, right? That was last that we had done. अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? What we are trying to solve is we are trying to make a Turing machine, ठीक है, for the subprogram. There can be many subprograms, but in your book, as a start, they have mentioned just 2 subprograms. One is insert, and the other one is delete, right? Insert और delete दोनों चलते कैसे हैं? Insert और delete कुछ ऐसे चलते हैं कि if you want to insert something at this location, right? So whatever you insert at this location, let's say मैंने B insert करना था इस location पे, right? So if I insert B at this location, after I'm done, ठीक है, मेरा जो बनेगा output वो मेरा इस तरह से बनेगा, right? So all of my contents from here till the null, they all will be shifted one step to the right, right? ये मेरा हो गया insert, right? अब मैंने इसको solve कैसे करना है? okay? मैंने इसको solve ऐसे करना है, कि मैं एक sample ले लेती हूँ, ठीक है, और हम इसमें done कर लेते हैं अपने जो भी alphabet वगैरह जो भी है हम इसमें देख लेते हैं। Let's say ये मेरी लोकेशन है, ठीक है, और आपको कहा गया है कि आप यहाँ पे इंसर्ट करें, लेट्स से लेटर, लेट्स से स्मॉल ए इंसर्ट करें, ठीक है। दिस विल हाईलाइट कि आप अगर अपनी जगह यहाँ से छोड़ेंगे इंसर्ट करने या करने के बाद, you need to leave a marker so that when you come back you should know that this is the place where you have to leave your tape head, right? So अब हम क्या करेंगे, मैं छोटी सी कोशिश करती हूँ इसमें हम बना सकें। So आपने क्या समझना है? आप समझेंगे इंसर्ट का जो ये बॉक्स है, आपको पता है जब हम बनाते हैं अपनी ट्यूरिंग मशीन तो एक फ्लो में एक चीज चल रही होती है। सो जब आप फ्लो में जाएंगे तो इंसर्ट ए का मतलब है जब आप कॉल करेंगे और आपका टेप हेड यहाँ पर होगा इस पॉइंट पे, जब आप अपनी ट्यूरिंग मशीन पे हैं, जब इंसर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपका इंसर्ट उस लोकेशन पे हो चुका होगा और आपका टेप हेड यहाँ पर होगा, राइट? जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ प्रोग्राम के फंक्शन से जब आप निकलते हैं तो कुछ चेंजेस हुई होती हैं, फिर वहीं से आप पिकअप करते हैं। अब मैं क्या करने लगी हूँ, वी आर गोइंग टू हैव अ स्टार्ट, ठीक है, एज यूजुअल ट्यूरिंग मशीन जैसे करती है, वी हैव अ स्टार्ट। उसके बाद आप इस लोकेशन पे आप ये बात अपनी याद रखिए, राइट? लेट्स से ग्रीन। सो व्हाटएवर यू रीड, ठीक है, अब आपको याद रखना है कि कुछ भी रीड कर लें आपने, जब भी आप ओवरराइट करेंगे आपने याद रखना है। सो हमें पता है हमारे 2 अल्फाबेट लेटर्स हैं, या आप ए रीड कर सकते हैं या बी रीड कर सकते हैं, जो भी रीड करें, ठीक है, उसको आप ओवरराइट कर दें विद सम स्पेशल कैरेक्टर। लेट्स से मैं इसको कर लेती हूँ विद सम स्पेशल कैरेक्टर एज डॉलर फॉर एग्जाम्पल। वो कहते हैं जो भी आ जाए ना उसके ऊपर आप लिख लें डॉलर, राइट?
ये मेरा मार्कर रहेगा जब मैं वापस आऊंगी, यहाँ से ट्रॉट करती हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे याद रहेगा कि मैंने अपनी टेप हेड को इस लोकेशन पे छोड़ना। अगर मैं इसी वक्त ओवरराइड कर दूंगी लेटर इन स्मॉल ए, तो फिर मुझे भूल जाएगा कि यहाँ पे मैंने टेप हेड छोड़ना था, यहाँ पे कहाँ पे, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव अ मार्कर व्हेन यू, जब अपनी जगह छोड़ें और आपको उस जगह पे वापस आना हो। इसके बाद आप क्या करें, अब आप देखिए मैंने 2 ब्रांचेस बना दी। These 2 branches is one of the ways, making them branches is one of the ways of remembering things. ठीक है? I am not using a memory element, but by these choices, I remember that if I'm coming on this side, it means कि मैं A read कर आई हूँ, A को मैंने overwrite किया, और if I'm coming from this side, I know कि मैंने B को overwrite किया. So I am remembering things without actually having a memory element. ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने मूव किया राइट के ऊपर। अब आप ये बात याद रखें कि अभी तक लेट्स से अभी हमने बी को किया, राइट? सो वी आर हियर, राइट? अभी तक हमने बी को रीड किया, उसको ओवरराइट किया विद द डॉलर साइन, हमने राइट मूव किया। इस वक्त बी इज इन द एयर, राइट? हाउएवर बी इज नॉट टू बी लॉस्ट। बी को हमने उठा के इस लोकेशन पे लेके आना है, इस बी को इस लोकेशन पे लेके आना है, इस ए को इस लोकेशन पे लेके आना है, इस ए को इस लोकेशन पे लेके आना है। और जब हमारा खत्म हो जाएगा, नल आ जाएगा, तो फिर हमें पता है हमने अपनी वापसी की दौड़ लगानी है। सो मैं क्या करूंगी, एज लॉन्ग एज आई हैव बीज, ठीक है, आगे अगर मेरा बी आ जाता है तो मैं बी को बी से ओवरराइड करूंगी और मैं राइट में मूव करती जाऊंगी, राइट? और जैसे ही मेरा आएगा ए, ठीक है, सो मैंने क्या किया, इस बी को, ये वाला बी इसके ऊपर ओवरराइड किया। जैसे मेरा ए आया, हमें पता है ये वाला बी जो पिछला था, नाउ दैट इज द वन विच इज इन द एयर, इसको मैंने यहाँ पे ओवरराइड करना है। लेकिन मुझे ये ए को याद रखना है कि दिस इज द ए दैट हैज टू बी मूव्ड और ओवर रिटन ऑन द नेक्स्ट सेल दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। सो जैसे मेरे पास ए आएगा, मैं उस ए के ऊपर लिखूंगी बी, ठीक है, और मैं कर दूंगी राइट, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो इस पॉइंट पे कहेगा कि जब तक एज आते जा रहे हैं, यू कीप ऑन ओवरराइटिंग एज विद एज। और जैसे यहाँ पे बी आए, उसका मतलब एक पेंडिंग ए था जिसको हमने ओवरराइट करना था, राइट? सो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट कहती है कि एक आपका बी पेंडिंग है विच इज इन द एयर, राइट, जिसको हमने याद रखा हुआ है कि दैट हैज टू बी ओवररिटन। ये स्टेट कहती है कि अगर तुम इस स्टेट में हो तो देयर इज एन ए दैट हैज टू बी ओवररिटन, ठीक है ना? मतलब इसकी प्रोग्राम के फ्लो से वी आर रिमेम्बरिंग समथिंग, और हम हमेशा ही करते रहे, बट समहाउ वी जस्ट प्रॉब्ली नेवर नोटिस इट इन दिस वे। करने के बाद आपको लैंड करना चाहिए नल के ऊपर, ठीक है। अगर तो आप ये ए था, अगर तो ये बी था और यहाँ पे नल किया, तो आपको नल के ऊपर राइट करना है बी और आपको मूव करना है लेफ्ट पे, राइट? और अगर आप हैं इधर से, यहाँ पे आपका था ए और नल आया, तो आपको पता है कि इस ए को आपने इधर ट्रांसफर करना है। सो नल आपने रीड किया, आपने ए को ओवरराइट किया और आपने लेफ्ट मूव कर दिया। सो आपका जो ट्रांसफर का प्रोसेस है, सो ए एंड देन ए, राइट? सो जो आपका ट्रांसफर का प्रोसेस है दैट इज कंप्लीट, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप वापसी की दौड़ लगाएंगे, ठीक है। दौड़ कब तक लगाएंगे आप, क्योंकि आपको फाइनल सब्स्टिट्यूशन करनी है इस लोकेशन पे। हमने मार्कर छोड़ा हुआ है, हमने एक्चुअली ए को इंसर्ट यहाँ पर नहीं किया। We did not insert it because there was no way we could distinguish कि हमने कहाँ पे रुकना है, right? So यहाँ से जब आप दौड़ लगाएंगे, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सारे एज को ए से रिप्लेस कर दो, सारे बीस को बी से रिप्लेस कर दो, और जैसे ही आए आपके पास, हमने मार्कर छोड़ा था डॉलर, राइट? डॉलर में अब आप ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। सो रिप्लेस इट बाय ए एंड यू मूव वन स्टेप टू द राइट, ठीक है। अब आप देखें, ये जो स्टार्ट, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट ना भी लूं, इसको एक स्टेट बना दूं, यहां से आप आ रहे थे और आप यहां से एग्जिट किए, तो ये हमारा क्लासिकल सा एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। सो ऐसे कि जैसे नहीं होता, जैसे आप आराम से ब्लैक बॉक्स की तरह, यू वेंट इनटू अ फंक्शन एंड देन यू केम आउट एंड द थिंग्स वर डन फॉर यू, राइट?
सो इसको आप बोलेंगे इंसर्ट सब प्रोग्राम, जिसमें आपने इंसर्ट फॉर द टाइमिंग हमने आर्ग्यूमेंट को हार्ड कोड किया है, लेकिन आगे जाके ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि हम आर्ग्यूमेंट्स को भी या हम अपनी मर्जी की चीजों को भी, वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं. डज दैट मेक सेंस? यस मैम. अच्छा, एक इसका ना हम एक ड्राई रन कर लेते हैं किसी और एग्जाम्पल के ऊपर, राइट, ताकि हमें क्लियर हो जाए जो भी थोड़ी बहुत हमारी अगर कंफ्यूजन है. एंड इफ यू वांट टू वॉच इट लेटर, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने ज्यादा चीजें करना चाहे बंदा तो ज्यादा अच्छी कर दी है, करना चाहे तो. ये सारा ही रब कर देती हूँ. सो लेट्स से आप यहाँ पर हैं और आपको इंसर्ट करना है, लेट्स से यहाँ पर हैं ए बी बी ए, ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने इंसर्ट करना है, लेट्स से ए ही इंसर्ट करना है, लेट्स से, राइट. सो मैं जानबूझ के इसलिए ले रही हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन हो कि हमें वापस कब आना है. दैट पॉइंट इज एक्चुअली हाईलाइटेड. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लो से आ रहे हैं, ठीक है. इसको स्टार्ट ना समझे, इसको समझे वन ऑफ द यू नो द वन ऑफ द स्टेट्स. आप यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपने कहा कि जी पहले रीड करें. सो व्हाट यू रीड इज बेसिकली व्हाट यू रेड इज एन ए. सो रिप्लेस दैट ए बाय अ डॉलर, ठीक है, एंड यू कम एट दिस स्टेट. आप यहाँ पे आए और ये मूव वन स्टेप टू द राइट, आप यहाँ पे आ गए. फिर वो कह रहा है कि अगर फिर एक ए है तो उसको रिप्लेस कर दें ए के साथ एंड यू मूव वन स्टेप टू द राइट. फिर वो कह रहा है कि अगर आपके पास बी आ रहा है तो इसका मतलब है जो पेंडिंग ए है वो आपने बी के ऊपर इंसर्ट किया, ठीक है, और अब बी ये वो स्टेट है जिसमें कि बी एक पेंडिंग है. फिर अगर एक और बी आ रहा है तो आप उस बी को पिछले वाले बी से जो रिप्लेस करें. उसके बाद अगर ए आ रहा है ओवर हेयर, you replace this A by the pending B and then you come here and you यहाँ पे आप दोबारा देखें तो यहाँ पे क्या है, as long as you have A's you replace them by A and you move one step to the right until you hit a null. जब null आया तो null को आप A से रिप्लेस करें और पीछे की दौड़ लगाएं, ठीक है. दौड़ कैसे लगाएं कि A's और B's दोनों को स्किप करते जाएं until you hit a dollar, right. सो स्किप करते 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 जब डॉलर आ गया तो आपने क्या किया, डॉलर को रिप्लेस किया आपने, आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस, डॉलर को आपने रिप्लेस किया ए के साथ, ठीक है, और आपने वन स्टेप टू द राइट. सो जो हमने एग्री किया था कि हमारा इंसर्ट ऑपरेशन इस तरह से चलेगा, हमारा इंसर्ट ऑपरेशन इस तरह से ही चलता है. जी यही बात है कि अभी तो हमने बहुत बेसिक प्रिमिटिव लेवल पे बात करें. ऑफ कोर्स we need to have a mechanism where we have advanced functions that can take variables as arguments and not hard-coded constant value. Right? Okay, अगर ये clear है तो मैं अगले delete पे चलती हूँ. जी should we move on to the next के कोई और एक और example करनी है इसकी. Okay. इसका मतलब है कि everybody is clear on this. Assumption मेरी है कि क्योंकि कोई नहीं बोला तो it is clear to everybody. Next एक है हमारे पास utility delete. अच्छा, delete does not require any argument. Delete means that if you are at a particular location, let's say you are here and then you have here, इस तरह से कोई आपकी है और अब यहाँ पे अगर आप delete कॉल करते हैं, कन्वेंशन ये है कि आप उसको ऑल कैप्स में लिखते हैं, तो क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी ये वाली जो आगे की है वो सारी उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी रिमूव्ड एंड यू आर गोइंग टू गो वन स्टेप अहेड, ठीक है. आपकी बुक में इस तरह से है, ऑल्दो लाजमी नहीं कि इसी तरह से चीज चले, लेकिन आपकी बुक वालों ने कुछ इस तरह से डिलीट का सब प्रोग्राम बनाया हुआ है वेयर यू लीव, तो आप जाते नेक्स्ट स्टेप सेल के ऊपर हैं तो आप कभी कहेंगे ये वाला तो हमने कभी रीड ही नहीं किया. वेल दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स वन ऑफ द वेज यू कैन डू द डिलीट थिंग, राइट. अब आपने क्या करना है, आपने सारे इसको उठा के आपने यहाँ पर लेकर आना है और आपने वन स्टेप अहेड छोड़ना.
जी आई एम कोई मुझे इसका बताए कि एल्गोरिथम कैसे करेंगे हम लोग? Maybe Basil can give his input. मैम इंसर्ट का ऑपोजिट काम करेंगे हम। जी थोड़ा ऑपोजिट ही करें क्योंकि इंसर्ट में हमें उठा के लेफ्ट पे लानी थी, सॉरी उठा के राइट साइड पे वन सेल पे करना था, और डिलीट को हमें वो जो वही सारा है उसको हमें उठा के लेफ्ट साइड पे ले। यस मैम। Aisha can maybe give her input as well. For that matter, anybody can give their input, right? Ma'am, does the pointer move one step to the right after deletion? जी राइट या लेफ्ट दोनों में छोड़ना, आपने वन स्टेप टू राइट भी छोड़ना। असल में मसला ये, अगर आप अपनी जगह छोड़ेंगे तो आपको याद भी रखना है कि आपको इस जगह पे वापस आना है। थोड़ा सा आपको हेल्प कर देती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आप क्या करें यहाँ पे, क्योंकि आपको अपना मार्कर छोड़ना ही छोड़ना है, आप उस डिलीटेड एलिमेंट को ओवरराइट कर दें किसी भी चीज से। क्यू है आपकी बुक में, कोई और टर्मिनोलॉजी यूज किया, व्हाटएवर, लेकिन हम जेनेरिक बात करते हैं, ऐसा एलिमेंट दैट इज जस्ट नॉट पार्ट ऑफ योर अल्फाबेट लेटर्स, मतलब आपकी स्ट्रिंग में नहीं है, वो आपने लिखा, उसके बाद आपने अपनी जगह छोड़ी, ठीक है, और लेकिन आपने याद रखा है आपने ओवरराइट किसको किया, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, व्हाट आई थिंक इज दैट यू विल गो टू द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जब एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे इसको नल करेंगे, ठीक है, और फिर बी को याद रखेंगे, इस बी को यहाँ पे ओवरराइट करेंगे, इस बी को याद रखेंगे, और इस डॉलर के ऊपर जब आप बी को ओवरराइट करेंगे तो फिर आप वन स्टेप टू द राइट अपने आप को छोड़ेंगे। दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग द डिलीट वाला थिंग। दोबारा से हम इसको कर लेते हैं। तो डिलीट करना हो, लॉजिक मिलती जुलती है, राइट। सो लेट्स से आप यहाँ पे कॉल करते हैं अपना फंक्शन डिलीट, ठीक है। दिस इज जस्ट one of the delete operations that are given in your book. They are not the standard or de facto delete operations, just another function that we write. उन्होंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि ऑफ कोर्स हमने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट या फिनिश अपना वर्किंग करनी होती है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव अ स्टार्ट समझ लें, या इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, यू जस्ट गोइंग टू प्लग इट इन वेयर एवर नीड, जैसे हम फंक्शन को प्लग इन करते हैं वहां पे उसके बाद यूज होता है, तो एज इट इज प्रोग्राम का फ्लो चल रहा होता है। सो अब आप क्या करें, अब आप इस लोकेशन पे हैं, whatever it is, चाहे A हो चाहे B हो, we are not distinguishing, we don't need to remember because that's something that has to be deleted anyways. आप उसको रिप्लेस करते हैं डॉलर के साथ और एक स्टेप मूव कर दें आप राइट पे, ठीक है। A आए तो भी डॉलर लिख दें, B आए तो भी लिख दें, राइट। सो दैट्स something that we need to get rid of, so we don't really have to remember. फिर आप जब आगे आएंगे तो आप क्या करेंगे, यू विल एज आई मेंशन्ड, अगर इससे डिफरेंट एल्गोरिथम बने आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। एज आए, एज को स्किप करके राइट पे चले जाएं, बीज आए, बीज को स्किप करके राइट पे चले जाएं, until you hit a null, राइट। जब नल आएगा तो आप क्या करेंगे, ये वाला नल, ठीक है, इस नल को आप नल से रिप्लेस करेंगे और आप कर जाएंगे, अब इट्स टाइम टू स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स, फिर आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, कि ये बी था, ये आपने याद रखना है कि आपने इसको यहाँ पे कॉपी करना है, राइट। जब आएंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट आपका है बी, ठीक है, बी को आप रिप्लेस करेंगे नल के साथ और आप लेफ्ट में मूव करेंगे, और अगर ए है तो ए को आप रिप्लेस करेंगे नल के साथ और आप लेफ्ट में मूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद as long as you have b's, you keep on replacing b's by b's and you move to the left. As long as you have a's,
कीप ऑन रिप्लेसिंग एज, और वो इसी तरह से जैसे हमने पिछली बार बनाया था कि अगर ए आ जाए तो उसको बी से ओवरराइट कर दें, लेफ्ट हो जाए, और अगर बी आ जाए तो उसको ए से जो पेंडिंग ए था उसे हम लेफ्ट कर दें, ठीक है। और हम स्टॉप कब करेंगे, वी विल कीप ऑन राइटिंग। अभी हमने क्या किया, इस नल को हमने बी को नल से ओवरराइट कर दिया, इसकी जगह ये बी डाल दिया, इसके ऊपर ये बी डाल दिया, इसके ऊपर हमने ये ए डाल दिया। अब क्या है, इस ए के बाद व्हाट वी रीड ऑन द लेफ्ट एक्चुअली इज अ डॉलर, राइट। सो अब आपको पता है, अब आपका एग्जिट का पॉइंट सॉर्ट ऑफ आ गया। जैसे ही आप डॉलर को रीड करेंगे तो आपका अगर इस चेन से आ रहे हैं तो आप ए इंसर्ट करेंगे और राइट पे जाएंगे, और अगर इस चेन से आ रहे हैं तो डॉलर पे आप बी करेंगे और आप राइट पे जाएंगे। मैम जी मैम ABL एंड BAL के एरोज रिवर्स नहीं होने चाहिए? जो बीच का लगा हुआ है, मैम येलो वाले जो 2 एरोज हैं, जो ABL और BAL, इनके डायरेक्शन रिवर्स नहीं होने चाहिए? चलिए एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो ठीक है, वी कैन जस्ट डू अ ड्राई रन और फिर हम उसको देख लेते हैं, राइट। और ये करने के बाद आप एग्जिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रीडू कर लेते हैं सारे को, और अगर मेरी कोई गलती है तो वो निकल आएगी मेरी। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मेरी कोई गलती निकल आती है और आप लोग पॉइंट करते हैं तो और ही मजा है इसका। तो ए ए ए बी बी नल, ठीक है, ए ए, और लेट्स से यहाँ पे मैं अपना डिलीट कॉल करती हूँ। अच्छा, अब हम कौन सा कलर यूज करें जो हमने यूज नहीं किया, ग्रीन, ओके। सो लेट्स से प्रोग्राम के फ्लो में हम लोग आए और हमें कॉल करना पड़ गया डिलीट। सो डिलीट कुछ इस तरह से कॉल होता है, राइट। फ्लो में अंदर आपने एक बॉक्स डाला होता है, अब होता है स्क्वायर, तो वैसे ही एक ऑपरेशन होता है जो कि आपने परफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यू विल सी ए हो बी हो, आपने उसको रिप्लेस किया डॉलर के साथ, और आप इस स्टेप पे आ गए और आप वन स्टेप टू द राइट आ गए। फिर आपने स्किप किया एवरीथिंग, ए को ए से रिप्लेस किया, आगे जाते गए, बी को बी से रिप्लेस किया, करते करते अंटिल यू हैड अ नल। नल को आपने नल से रिप्लेस किया एंड यू मूव वन स्टेप टू द लेफ्ट, ठीक है। फिर आप आए यहाँ पे, अब आपका रिमेंबर करने वाला काम शुरू हो रहा है। सो व्हेन यू कम हियर यू रीड अ बी, आपको पता है कि आपको उस बी के नल से रिप्लेस करना है, लेकिन ये स्टेट वो है जो कि बी को याद रखती है, और ये स्टेट है जिसके पास एक पेंडिंग ए है और वो आपके ए को याद रखती है। आप इस स्टेट पे आगे, जिसका मतलब है कि योर वन ऑफ योर बीज इज पेंडिंग, राइट। जब भी आप ओवरराइड करेंगे, जब आप इस स्टेट से निकलेंगे, जब भी आप ओवरराइड करेंगे आप पेंडिंग बी को ओवरराइड करेंगे। जब भी आप इस स्टेट से बाहर निकलेंगे आप हमेशा ए को ओवरराइड करेंगे, राइट। सो अब क्या होगा, as long as you have another b को b से ओवरराइड किया and you moved one step to the left, फिर आगे आपके पास a आ तो गया। तो हमने यही बात किया कि इस a को भी हमने b से रिप्लेस करना है, राइट। सो हमने क्या है, हमारे पास एक पेंडिंग b है जो कि हमने ओवरराइड करना है, लेकिन दिस ब्रिंग्स अस हियर ऑन दिस स्टेट जहां पे a पेंडिंग है। अब वो कह रहा है कि मैंने वो नहीं बनाया, as long as you have a's, आप a को a से रिप्लेस करें and keep on moving to the left until आपके पास आ जाए डॉलर। डॉलर का मतलब ये है कि अब हमारा काम है कि अब हम अपनी चीज को ओवरराइट करें। अगर हम इधर से आ रहे हैं तो डॉलर के ऊपर हम ओवरराइट करेंगे ए, और हम अपने आप को वन स्टेप टू द राइट मूव कर जाएंगे, राइट। सो मैं अब कहां पर आऊंगी, यहां पर आऊंगी, यहाँ पे मेरा ए आ चुका होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे नल होगा, यहाँ पे मेरा नल होगा। सो आई एक्चुअली सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। सो मैं इसको आराम से कन्वीनियंटली इसको अपने फंक्शन कह सकती हूँ, यू कैन यू नो व्हाट ब्लॉक्स आर, वो इंसर्ट हो जाते हैं वहां पर, और आप उसको वहां से अपने प्रोग्राम को टेकअप करें, राइट। इज दिस क्लियर? मार्कर देखें, ऐसा है कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। अगर आप लोगों को टाइम मिले, आप लोग पिछले फाइनल एग्जाम्स उठा के देखें, फाइनल में ज्यादातर ट्यूरिंग मशीन आती है। इफ यू सी, तो देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट रियली केयर वेयर लीविंग द मार्कर, but there are times when we specifically tell you that that's where we want the marker to be. So sometimes you have to clean up, sometimes extra जो variables होते हैं, sometimes you know आपको सोच के करना पड़ता है, like over here कि where you leaving the marker. देखिए, अगर तो आप flow के बीच में, for example whenever you call a function you would want
कि फंक्शन कॉल होने के बाद आपका प्रोग्राम वहीं से शुरू हो जहाँ पे फंक्शन के बाद की जहाँ कॉल आती है, राइट? तो अगर आपने फंक्शन इस जगह पे कॉल इस जगह पे कॉल किया, यू वुड वांट कि आपका आगे प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन से चले, विच मेक्स सेंस। अब ये ना हो कि फंक्शन आप जैसे आप अपना कोड भी लिखते हैं, फंक्शन हो और आगे जाके किसी और जगह पे पॉइंट करो। जैसे ये आपका लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे फंक्शन है, जैसे ही फंक्शन हुआ आपका प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे आता है, इट डजंट गो लाइक ऑन सम अदर लाइन, दैट विल सिंपली नॉट मेक सेंस, राइट? तो यू हैव टू मेक सेंस टू व्हाट यू डूइंग। आई थिंक ऐसी होनी चाहिए जैसे कि they should be solving problems rather than creating problems for you, right? Okay, if that's clear, I'm going to be talking about one of the ways by which you can use subprograms, delete and insert. Red portion कौन सा है? Red portion कौन सा है? The शुरू वाला part है, if you're talking about this part. Red circle one. ये तो बस है कि जब सबसे पहले आएंगे तो आपको इस वाले के ऊपर अपना मार्कर छोड़ना पड़ेगा, दैट्स द पॉइंट, राइट? सो हमने मार्कर इसके ऊपर छोड़ा है डॉलर। मैंने स्पेसिफिकली आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू हैव अ मार्कर, क्योंकि मार्कर के बगैर फिर हम वापस नहीं आ सकेंगे। मुझे अपने प्रोग्राम को अगर यहाँ से कंटिन्यू करना है, जैसे फंक्शन के फौरन बाद कंटिन्यू करना है, आई विल जस्ट नॉट बी एबल टू डू इट। इफ आई वांट टू डू इट आई विल हैव टू हैव अ मार्कर, राइट? इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डॉलर से किया, अदरवाइज आई कुड हैव सिंपली जैसे मैं ये कर सकती थी कि यहीं से मैं इसको ऐसे करना शुरू कर देती, बट देन अगर मैंने जगह छोड़ दी और फिर मैं वापस आती तो आई विल नॉट नो वेयर टू रिज्यूम द फंक्शन फ्रॉम। इफ एवरीबडी इज ओके विद दिस, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कराती हूँ, ठीक है? लैंग्वेज विच इज एक्चुअली अ CFL, ठीक है, ANNBN। The reason why I'm doing this for you is not a complicated program like AN, BN, CN. Complicated तो नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी बन जाती है उसकी. Because I want to highlight the use of the subprogram delete, ठीक है, and of the subprogram insert. अच्छा, ये आपको पता है कि लाजमी नहीं है कि आप insert और delete करें। अब मैं जबरदस्ती यूज करूंगी because I'll be formulating my algorithm like this. लेकिन हमें पता है कि इसके लिए तो हमें मेमोरी स्टैक के साथ भी हो जाता है, बट जस्ट टू हाईलाइट हाउ टू यूज डिलीट इन योर प्रोग्राम एंड हाउ टू यूज इंसर्ट इन योर प्रोग्राम, मैं आप लोगों के लिए ये सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी वेयर द फोकस इज ऑन द यूज ऑफ डिलीट एंड इंसर्ट सब प्रोग्राम एंड नॉट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? एल्गो में ऐसा बनाती हूँ, ठीक है, सिंपल सा है एल्गोरिथम, क्योंकि अपना खुद डिजाइन करना होता है। देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मैं अपना एल्गोरिथम ऐसे बनाती हूँ कि मेरा एल्गोरिथम है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, मैं इंसर्ट करूंगी कोई स्टार्ट सिंबल। आपको ये इंसर्ट करना पड़ता है, वरना फिर आप टेप की एज पे जाते हैं और उससे फिर आपका क्रैश होने का इशू होता है। आपको याद हो मैंने पिछली क्लास में ये काम किया। तो अब आपका जो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप यू विल नीड टू डू इज यू विल नीड टू इंसर्ट हैश। इंसर्ट आपने किया हैश, उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप पे आपके छोड़ दिया। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप सेल से स्टार्ट करें। अब मैं क्या करूंगी, अब आप देखें कि मुझे इस फॉर एग्जांपल इस ए को फॉर एग्जांपल इस बी से कैंसिल करना है, या फॉर एग्जांपल इस बी से कैंसिल करना है, जो भी मेरी लॉजिक बनती है, राइट? तो मैं क्या करूंगी, आई विल कम अप विद सम मैं डिलीट ऑपरेशन और मैं इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट मैं यूज कर लिया, आई विल बी यूजिंग डिलीट ऑपरेशन फॉर दिस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको करती हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है? जब मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा बी, राइट? और यहाँ पे आ जाएगा नल, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगी, मैं एक्सट्रीम राइट पे जाऊंगी, ठीक है? और जो लास्ट वाला बी होगा उसको मैं कन्वर्ट ओवरराइट कर दूंगी नल के ऊपर। फिर मैं वापस दौड़ लगाऊंगी, तब तक जाऊंगी जब तक कि मेरे पास हैश नहीं आ जाता। पहला लेटर मेरे पास होना चाहिए ए। ए को मैं क्या करूंगी, आई विल डिलीट, ठीक है? रिकर्सिवली डिलीट होगा, मतलब जब भी आएंगे आइटरेटिव डिलीट होगा, और बी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे नल आ जाएगा। तो जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगी तो मेरा यहाँ पे होगा नल,
इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा होना चाहिए b and I should be ending. अगर यहाँ मुझे b मिलता है तो I should accept, right? So this is my simple algorithm. You can come up with different algorithms too. This is just to highlight, very simple problem, just to highlight the importance of or the use of delete and insert subprograms. So I will keep this sample with me, double A, double B, right? So my problem says I start, ठीक है, मैंने problem कौन सी solve करनी है? Now I am going to be using the utilities delete and insert to solve my problem A and Bn, and I am coming up with the Turing machine slash algorithm for the problem A and Bn. And I am taking a sample which is double A, double B to highlight the use of those two subfunctions. So I come, start, algorithm has to be generic, start, and the first thing I ever do is I say U in spelling insert hash. Popularly hash is used as the starting marker use होता है. Nonetheless, it's not necessary आप कुछ और भी use कर सकते हैं, लेकिन just one of the popular conventions that has been used by your book, right? अब आप जब इससे बाहर निकलेंगे, आपको पता है जब आपने insert किया यहाँ पे, at this location if you insert hash, तो आपके contents will have moved one step ahead and you will be pointing at the next location, right? अब insert hash करने के बाद आपने क्या किया? जब आप यहाँ पर आए तो you should actually check, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमें चेक करके फिर डिलीट करना पड़ेगा. हम सिंपली, क्योंकि डिलीट तो कंप्लीटली वाइप ऑफ कर देगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर तो मैंने ए रीड किया है तो मैं उसको ए से रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है, और मैं वन स्टेप टू द राइट जाऊंगी, ठीक है, यहाँ गई. सो अब क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा काम नहीं करना तो मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से वापस जाऊंगी, ए को जो भी है ए को ए से रिप्लेस किया, लेफ्ट किया, या बी को बी से रिप्लेस किया और लेफ्ट किया, ठीक है. तो मैं दोबारा इस पॉइंट पे जाऊंगी तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करूंगी, मैं यहाँ पे कॉल करूंगी डिलीट, ठीक है. तो जब यहाँ पे मैं डिलीट कॉल करूंगी तो मेरे कंटेंट्स कैसे हो जाएंगे कि मेरा ये डिलीट हो चुका होगा, ये मेरा यहाँ आ चुका होगा, ये मेरा यहाँ आ चुका होगा, ये मेरा यहाँ आ चुका होगा. तो मेरे कंटेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे. आई विल हैव ए बी बी हैश और मेरे जो टेप हेड हो वो नेक्स्ट पर होगा, ठीक है. ये मैं डिलीट के बाद जब निकल जाऊंगी. इसके बाद आई विल गो टू द एंड ऑफ माई स्ट्रिंग. ए को ए से रिप्लेस करती गई राइट, बी को बी से रिप्लेस करती गई राइट, और जैसे ही मेरे पास आया नल, ठीक है, मैंने नल को नल से रिप्लेस किया और मैंने मूव कर लिया लेफ्ट पे. अब मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए एक बी, राइट, और उस बी को मैं नल से रिप्लेस करूंगी और मैं मूव कर जाऊंगी लेफ्ट पे, और मैं सब कुछ लेफ्ट पे, मैं ए को ए से, बी को बी से, ठीक है, until I will hit a hash, right? जैसे ही मुझे हैश मिलेगा मैं हैश को हैश से रिप्लेस करके वन स्टेप टू द राइट आ जाऊंगी, राइट. सो अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ और अब ये मेरी सब प्रॉब्लम बन गई है, राइट. आई विल डू द सेम थिंग अगेन, ठीक है. मैं यहाँ पे दोबारा वो काम करती हूँ. मैं यहाँ पर आई, व्हाट आई रेड वाज इन ए, ठीक है. आप एक और दूसरी ब्रांच वैसे तो खैर होनी नहीं चाहिए. आपने ए रीड किया, ठीक है, तो यू रेड एन ए, आपने रिप्लेस किया ए को ए के साथ और आप वन स्टेप टू द राइट हो गए, जस्ट टू कंफर्म दैट वाज ए दैट यू वर डिलीटिंग. फिर चाहे ए था या बी था, आपने उसको एज इट इज रिप्लेस किया और वन स्टेप टू द लेफ्ट आए तो आपने डिलीट किया. तो इसका मतलब है आपने ए को ही यहाँ से डिलीट किया, राइट. सो यू हैव बी एंड योर टेप हेड इज हियर, ठीक है. डिलीट करने के बाद जब आप यहाँ पर आए तो आपके पास नल, यहाँ पे आपको नल भी ऐड करना चाहिए. नल को नल से रिप्लेस किया, सॉरी, डिलीट करके जब आप आए तो आपके पास यू एक्चुअली लैंडेड ऑन नल, राइट. सो नल को आपने नल से रिप्लेस किया एंड यू मूव्ड वन स्टेप टू द लेफ्ट. अब आप आ गए बी के ऊपर. ये वही बी है जिसको आपने कन्वर्ट करना है ऑन टू अ नल, जो कि आपने इसको कैंसिल करना है. आपने इसको कैंसिल किया और सब कुछ स्किप करते हुए जो आप यहाँ पर आए तो अब आपके पास यू आर स्टैंडिंग हियर. सो इट्स लाइक मेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है. अब हैश के बाद सिंस
this A cancelled this B and this A cancelled this B. So it's about time you need to exit. जैसे ही हैश के बाद अगर आप हैश के बाद आ रहे हैं और आपके पास इंस्टेड ऑफ ए यू गेट अ नल, तो अब नल को नल से रिप्लेस करें और कहीं भी मूव करके, सो ये से दिस वाज एक्सेप्ट, राइट? So this is one of the ways I have actually forcefully used the insert and delete operations to highlight how they can be used. जब आप enter करेंगे, what is going to be the state of your tape? और जब आप exit करेंगे, तो what is going to be the state of your tape? What will be the state of your tape head as well? So these things you need to take care of, because in the assignment that I've posted, you may use the insert and delete operation. मैं बल्कि उसको update कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप शुरू से इंसर्ट और डिलीट अगर आप बनाने बैठ जाएंगे हर एक में, दैट विल बी कॉस्टिंग यू a lot of time and there will be duplication of the efforts. Any question on this? Ma'am, right now we verified a string, right? We verified A, B, B. We can